Very good morning, students of class 10th. The further topic that we have to go through with the economics, chapter number 2, sectors of Indian economy. The students, in our earlier classes, we came across with the definition of economic activities, with the different economic activities existed in India, like primary, secondary and tertiary, along with the definition and with the examples, right? The products of the three sectors I have already mentioned, and I have given you the some NCERT based questions to you to solve it. Now students, also we across with the topic that we have to go through is interdependence of the three sectors, that is the primary, secondary and tertiary sectors, how we can say that these sectors are interdependent on each other. Then intermediate goods and final goods, and about the historical changes of the three sectors of Indian economy. We talk on the very first topic, and the topic is your interdependence of the three sectors. As I have already told you in our class that the three sectors are interdependent on each other. It means, for example, if we are talking about the primary sector produces what? Raw material. With the help of transportation or communication, that comes under tertiary sector. It goes to it transported to secondary sector, it means the manufacturing unit, fine, which is also called as processing unit, to make or to convert the valuable to convert the raw material into the valuable prices, children. Then again from that with the help of the tertiary sector, the converted or the finished goods transported to the market, and from the market the consumers is there to consume the goods. Fine students. So all these sectors are interdependent on each other, and for example अगर कुछ भी problematic होता है इन तीनों sectors में, the entire chain, you can say, or you can say the entire phases of your three sectors become a hamper, and it hamper the growth of economy of a country. For example, students, like primary sectors like agriculture produces sugarcane as a raw material. Secondary sector like sugar mill, it processing the sugarcane into sugar, and with the help of tertiary sector like transportation and communication facilities provided, the sugar are transported to the market, and from their market the consumer will able to get the sugar, and ultimately it leads towards to count in an Indian economy. Fine students. In case sometimes due to unfavorable condition occurs, I have already told you in this for example like a strike of transporters, it leads to delay of the commodity, fine, and ultimately rise to the price of the sugar. सिंपल स्टूडेंट्स, अगर किसी कारण से जैसे ट्रांसपोर्टर्स का स्ट्राइक हो गया, या मैंने आप लोगों को बताया कि फार्मर्स ने शुगर केन देने से मना कर दिया शुगर मिल ओनर्स को, या शुगर मिल ओनर्स ने शुगर केन लेने से मना कर दिया, फाइन, एट अ स्पेसिफिक प्राइस, तो उस कंडीशन में भी ट्रांसपोर्टर्स पे या टर्शियरी सेक्टर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कॉमोडिटी नहीं है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, तो इट अल्टीमेटली हैम्पर्स द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑल्सो और टर्शियरी सेक्टर ऑल्सो. दैट इज़ अगेन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी या ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक कर दी, तो उसमें क्या होगा कि फील्ड से शुगर केन भी नहीं उठाया जा पाएगा और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा शुगर मिल से, और शुगर मिल से भी तैयार माल को नहीं मार्केट में भेजा जाएगा. अल्टीमेटली क्या होगा, इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा कि जो चीनी के दाम है उन दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी, एंड द पीपल वर अनएबल टू गेट द स्वीटनेस इन देयर लाइफ, यू कैन से. So ultimately it collectively these are important for the country's growth. So this is all about the interdependence of the three sectors. बेटा इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ज़रूर है. Next important is your the differentiation of the gross domestic product and gross national product. If we are talking about the gross domestic product, children, it's also known as GDP, घरेलू
सकल घरेलू उत्पाद, है ना। और these are GDP is known as gross domestic product. It is the value of all the final goods and services that are produced within a country during a specific period of time. You can say during a particular time period, right? वो particular year होता है, उस particular year में final goods and services whatsoever the produces in a particular year is counted, and that is what we call it as GDP. Children, this GDP is not able to get the foreign revenue because it generates only the domestic revenue, and it is only give the actual status of domestic economy. It means that it is the only way to find out which sector is have its need for the growth, or which sector is which sector's performance is quite good. इन तीनों सेक्टर्स में कौन सा सेक्टर, क्योंकि यही एक डोमेस्टिक जीडीपी ही है जो कि तीनों सेक्टर्स के बारे में एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा सेक्टर, क्योंकि हम तीनों को कलेक्टिवली लेते हैं, तो इन तीनों में से कौन सा सेक्टर को नीड है अच्छे ग्रोथ की, कंसंट्रेशन की। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर नीडेड मोर एंड मोर कंसंट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ यू कैन से गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ एज़ कम्पेयर टू द टर्शरी एंड एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का जो बेस है दैट इज़ योर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज़ और खासकर एग्रेरियन इकोनॉमी। तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी का एक जो आधार है विच इज़ कॉल्ड एज योर प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो हम इसके द्वारा पता लग सकते हैं कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कितना है, सर्विस सेक्टर्स का कितना है, जिसको हम लोग टर्शरी भी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर प्राइमरी सेक्टर का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन बेटा जीएनपी की, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जीएनपी, तो जीएनपी इज सिंपली कॉल्ड एज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बेसिकली द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन अ कंट्री along with the goods and services produced for the internationally, or can say foreign goods and foreign market, and we are gaining the foreign revenue because GNP increases the heavy flow of income from abroad, and this is what we call it as GNP. But GNP does not give the actual status of the domestic, you can say the domestic economy. Fine. So this is about the GNP and GDP, children. इसका differentiation भी पूछा गया है. Now, if we are talking about further important distinguish between the intermediate goods and final goods, तो मैं आपको एक example दे रही हूँ बेटा. जब भी हम मार्केट में जाते हैं और we have to pay, for example, हमें कॉफ़ी लेना है, या we need bread, और वी नीड टॉफ़ीज़, और वी नीड बिस्किट्स, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिस्किट लिया, तो हम जो पैसा पे करते हैं वो हम बिस्किट का करते हैं, द पैकेट ऑफ द बिस्किट, राइट। ध्यान से बेटा, हम पैकेट ऑफ द बिस्किट, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 10 रुपीज़, हमने 10 रुपीज़ दिया और हमने वो बिस्किट लिया। इज़ दैट क्लियर बेटा? हाँ, उसमें जो 10 रुपीज़ है प्रिस्क्राइब्ड रेट है, MRP जो है, वो MRP इंक्लूड कर रहा है द ingredients which are include in that particular packet making of the biscuit. ठीक है, so there are the two types of goods. बहुत important question आपके सामने आ रहा है कि we have to first distinguish between the intermediate goods and final goods, and how do we count the various goods and services and the total production in each sector, children. हम कैसे काउंट करेंगे तीनों सेक्टर्स का, तीनों सेक्टर्स के सब सेक्टर्स का, सर्विसेज का, गुड्स का, हम किस तरीके से नेशनल इनकम को हम जनरेट करेंगे, इज दैट क्लियर? काउंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना हमें मुद्रा मिली है, चाहे वो घरेलू मुद्रा हो, चाहे वो आपकी
फॉरेन यानी विदेशी मुद्रा, हाउ कैन वी काउंट इट आउट? चिल्ड्रन, हम काउंट करते हैं बेसिकली दो वेज में. वन इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज फाइनल गुड्स. अब पहले तो हम ये जानें कि इंटरमीडिएट गुड्स है क्या और फाइनल गुड्स है क्या. इंटरमीडिएट गुड्स बेटा वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ऑल द गुड्स विच आर फर्दर वी यूटिलाइजेज फॉर प्रोसेसिंग. ध्यान से, वी आर यूटिलाइजिंग द गुड्स फॉर द प्रोसेसिंग and we are utilizing for the resale in the same period of the you can say in the same year is what we call it as the intermediate goods. यानी कि unfinished goods, simple अगर आपसे पूछा जाए क्या है ये, unfinished goods are called as intermediate goods. That goods are used for processing and for the resale within a year is called as your intermediate good. फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जितने भी सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, वो हम कहलाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी. और फाइनल गुड्स क्या है बेटा? वो गुड्स है जो अब नाउ इट इज़ रेडी फॉर आवर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स and it cannot be resold, it cannot be further processing is what we called it as final good. Final का मतलब ultimately वो पूरा complete हो चुका है, no further processing is doing for this. ठीक है, एक एग्जाम्पल, wheat flour, sugar, कोकोज, ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं आपके किसके? बिस्किट के. ठीक है बेटा, कन्फेक्शनरी यानी हम इसको इस्तेमाल हम केक में भी कर सकते हैं, केक इंडस्ट्री और यू कैन से कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़. ठीक है, या बिस्किट मेकिंग में. तो यहाँ पे वीट फ्लोर, शुगर एंड कोकोज एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स, these are combined together to form a intermediate one. ये सब क्या कहलाएगा बेटा? इंटरमीडिएट. लेकिन इन सब को प्रोसेस करके जब फाइनल पैकेजिंग के साथ बिस्किट निकलेगा फॉर द कंजप्शन चिल्ड्रन, दैट बिस्किट इज कॉल्ड एज योर फाइनल गुड्स. हम उसको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स. ठीक है ना. जैसे कि कार है, जब कार पूरी तैयार हम लोगों को शोरूम में दिखती है तो उसके टायर्स होते हैं, उसके शीट्स होते हैं, उसके बेल्ट्स होते हैं, उसके मिरर्स होते हैं, है ना, और हॉर्न्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैकेनिकली भी या टेक्निकली भी हम बात करते हैं. तो वो सब अलग अलग पुर्जे जो है वो अलग अलग जगहों पे बनते हैं, फिर उसको कलेक्ट किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, टायर्स लगाया जाता है. ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग जो है, दीज आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स. और जब यही प्रोडक्ट्स आपस में मिल के फिर वो आपको फाइनल जो बना के दे रहा है, फाइनल गुड वो आपका तैयार है, वो दैट इज़ रेडी फॉर द सेल इज़ कॉल्ड एज योर कार. That car is only we are giving the amount to that car only. बेटा हम उसी इसमें इंश्योरेंस वगैरह सब लगा के वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? वो कार का रेट है ना. तो इट मीन्स अगर कार का रेट 4,25,000 है तो वी हैव टू पे 4,25,000. हाँ, इसके अपार्ट समटाइम्स कुछ हिडन चीज़ें होती हैं, वो क्लियर कट किया जाता है, आपके डीलर्स उसको क्लियर करते हैं, तो वो एक डिफरेंट इशू है. लेकिन यहाँ पे टायर्स हैं या एल्यूमिनियम और स्टील की शीट्स हैं या फिर आपके मिरर्स हैं, अल्टीमेटली दीज आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हेन दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज द कार. तो कार क्या है? फाइनल गुड्स. चिल्ड्रन, एक बड़ा ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था कि इसको डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी था. The importance of distinguish between the intermediate and final goods are very, very necessary to know about the economic condition of a country. Because if we are talking about the national income, it includes the value of the final goods only of the three sectors. Some of the three sectors. बेटा, अगर हम
अच्छा, मैंने जैसे कहा कि कार में 4,25,000 की कार है तो उसमें वो हर चीज़ इंक्लूड है, टायर का रेट भी इंक्लूड है, नेल है, उसमें हॉर्न है, उसमें लाइट्स हैं, उसमें सारी चीज़ें। वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है बेटा, हाँ अगर एसेसरीज़ हम कहते हैं कि अच्छा 25,000 का एसेसरीज़ और लगा दो, सीट का कवर वगैरह, वो डिफरेंट हो जाता है। तो इट कम्स टू योर, अगर हम एस्टिमेट करें तो 4,50,000 का हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 3 सेक्टर्स, तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि जो इकोनॉमिस्ट है वो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हम किसको काउंट करें। हम इंटरमीडिएट को काउंट करेंगे तो बेटा इट विल टेक एम्पल ऑफ टाइम, और इट इज़ वेरी वेरी टीडियस जॉब। और हम कहें कि हर थाउजेंड्स और हंड्रेड्स और करोड़ आइटम्स आर मेकिंग डे बाई डे इन अ डे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ द, यू कैन से लाख ऑफ द गुड्स आर मैन्युफैक्चर डे बाय डे, और वो उसको बनाया जाता है। या तीनों सेक्टर्स को अगर हम कलेक्ट करें तो मिलियंस ऑफ टन्स आर देयर। तो हर टन्स को अगर हम उनके इंग्रेडिएंट्स को काउंट करना शुरू करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस है। यानी कि कितने केजी इस्तेमाल हुआ आपके, यानी एक बिस्किट, उसे एक बिस्किट का अगर हम एक वैल्यू निकालने लगे तो इट इज़ क्वाइट वेरी टीडियस चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिस्ट का था कि अगर हमें पैसा पे करना है या हमें काउंट करना है अपने फाइनेंशियल ईयर में, तो हम किसको काउंट करें, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को। क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स जो होते हैं या कस्टमर्स होते हैं वो फाइनल गुड्स को ही वो लोग परचेज करते हैं अपने कंजप्शन के लिए, और उसी में वो दे आर गिविंग द रेवेन्यू। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट ओवर देयर। So students, it is quite very tedious jobs to count hundreds and thousands of goods and services daily, which are produced in each and every sector. Thus, national incomes, it includes only the final goods, not the intermediary goods. Intermediate goods को ना करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ किसको करते बेटा, final goods को। Is that clear? Next topic is your historical changes in the 3 sectors of Indian economy. बेटा हिस्टोरिकल चेंजेस जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्या वो एक जैसा है हमेशा से रहा? क्या उनका शेयर, बेटा एक्चुअली 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, शेयर इन द जीडीपी और यू कैन से शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इन दोनों को जज करते हैं, लेकिन हम लेटर ऑन एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में हम तीनों सेक्टर्स को अलग से करेंगे। लेकिन अगर हम जीडीपी की बात करें तो तीनों सेक्टर्स में डिफरेंट हुआ। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो नेट नेशनल इनकम है वो जनरेट कैसे होता है, कॉमोडिटी सेक्टर्स लाइक आपका एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिग एंटरप्राइजेस, ये सारे के सारे यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दीज आर कॉमोडिटी सेक्टर्स हो गए, और सर्विस सेक्टर्स और टर्शरी सेक्टर्स लाइक ट्रेड, टूरिज्म एक्सेट्रा, ये सब अलग हो गए। तो इन दोनों को मिला दिया जाता है एंड दे फॉर्म टू जनरेट अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्प्रूवमेंट है किसका, तीनों सेक्टर्स का, विच लीड्स टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। लेकिन बेटा सिनारियोज चेंज हो रहे हैं। सिनारियो में चेंज होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के रिस्पेक्टिव में सिनारियो, इकोनॉमिक सिनारियो में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज आर हैविंग अ वेरी good rate of growth in terms of share in the GDP as compared to the primary you can say primary sector. जो परसेंटेज शेयर है डिफरेंट सेक्टर्स का इन नेट इट इज़ इक्वल टू द नेशनल इनकम एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे अगर हम बात करते हैं 1950s to 51 की, तो एग्रीकल्चर यानी कि अगर हम बात करें हमारे प्राइमरी सेक्टर की, ठीक है, कॉमोडिटी सेक्टर इसमें प्राइमरी सेक्टर बोल रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो 56.5% थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 51, लेकिन वो घट के आगे 26.4 इन 1997 to 98। मैं इसका रीज़न बताऊंगी।
अगर हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की तो इसका कंट्रीब्यूशन 28.2 महज 28.2% था 1950-51, लेकिन ये टर्न अप हुआ फ्रॉम 28 टू 46.6% इन 1997-98। ये भी एक पॉइंट इमेजिनेटिव है। सेकेंडरी सेक्टर ने भी, जहां उसको सिर्फ 15.5% था ग्रोथ रेट उसका 1950-51 में, वहीं पे जो उसका कंट्रीब्यूशन था, वहीं पे अगर हम बात करें तो वो बढ़कर 1997-98 में 27 आया। तो अगर हम डाटाज़ की अगर आप बात करते हैं बेटा, तो इन डाटाज़ में हमने ये देखा कि 1950-51 में एग्रीकल्चर यानी कि प्राइमरी सेक्टर्स को या सब सेक्टर्स जो अदर्स है, माइनिंग वगैरह है, इन सब में गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना था इन ऑल इट्स टर्म। फॉर एग्जांपल फूड में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में काफ़ी हद तक कोशिश की गई भारत को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की, अपने माइनिंग रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने की और रिसोर्सेज में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की। लेकिन चूंकि कुछ कारण से एम्प्लॉयमेंट तो काफ़ी है एग्रीकल्चर में या प्राइमरी सेक्टर्स में, लेकिन बेटा वो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहा था, जिसके वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे और भी अदर जो नेगेटिव इश्यूज आए, डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर, यू कैन से डिक्लाइन इन द एनिमल हस्बेंड्री, और बहुत सारी चीज़ें वो अल्टीमेटली लीड किया टुवर्ड्स द डिक्लाइन इन द प्राइमरी सेक्टर। और इसका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये भी था कि लोगों ने कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी करना शुरू कर दिया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इसके बारे में, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि द पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम देयर ओन जॉब्स टू द अदर वन। उन्होंने एग्रीकल्चर का काम छोड़ के वो सर्विस सेक्टर्स में आने लगे। तो कहीं ना कहीं टर्शियरी सेक्टर, खासकर एमएनसीज के आने के बाद, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, ये जैसी जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज थी, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग, ये सब इस तरीके से आया जिसने कि कहीं ना कहीं एक बूम लेकर आए इन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। और लोगों ने कहीं ना कहीं, या सरकार ने भी सेकेंडरी सेक्टर्स जैसे एमएनसीज को आने दिया, और अब हमारे जो इंडियंस हैं उन्होंने एमएनसीज को ज्वाइन करके दे आर सिक्योरिंग देयर, यू कैन से, एम्प्लॉयमेंट। तो अल्टीमेटली सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी में बूम हुआ एज कंपेयर टू प्राइमरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1997-98। और अगर हम बात करें प्राइमरी का, तो वो 1950-51 में उसमें सबसे अच्छा बूम था। तो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन द सोसाइटल एक्चुअली बेटा, और एक नीड है ना, जो एक रेवेन्यू जनरेटिंग है। जैसे मैंने कहा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैविंग रेवेन्यू एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग पोटेंशियल्स है, और यही कारण था कि आगामी आने वाले दिनों में भी टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 3 सेक्टर्स क्लासिफिकेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट लीड्स इन द कंट्री इन अ रिस्पेक्टिव ईयर इज़ ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द 3 different sectors due to primary, secondary and tertiary sector children, like agriculture, which is called as a subsector of primary. These are considered be the backbone of the country, and it is also called as primitive economy. The growth in the agriculture industry, industrial service sectors, ultimately it leads towards the improvement in the Indian economy. But due to the negative aspects it comes out in the agriculture scenario, the primary sectors are declining day by day, and which ultimately hampers the Indian economy and it makes the Indian economy unstable. तो जिस तरीके से आपके रिपोर्ट कार्ड, आपको अच्छे परसेंटेज लाने के लिए 5 सब्जेक्ट्स में आपको जूझना पड़ेगा और इक्वल मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तभी आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बनेंगे। उसी तरीके से बेटा ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कंट्री का इकोनॉमी, खासकर भारत जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर उसकी इकोनॉमी को अगर हमें सुधारना है तो हमें तीनों सेक्टर्स पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा। ठीक है? सो इन द नेक्स्ट क्लास वी हैव टू गो थ्रू विद द 2 सेक्टर्स क्लासिफिकेशन, विच इज़ कंप्राइजेज और विच इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, एंड देन बेस्ड ऑन द ओनरशिप, दैट इज़ कॉल्ड एज योर
प्राइवेट एंड पब्लिक विद एग्जाम्पल्स, राइट बेटा. और भी हम अदर इश्यूज़ पे बात करेंगे. द चैप्टर इज़ क्वाइट लेंदी बट यू हैव टू गो थ्रू विद द नोट्स एज वेल एज विद द वीडियोज चिल्ड्रन. सो थैंक यू, टेक केयर, टिल देन बाय.